Good afternoon, good evening to all my friends and viewers. And today we are connecting Miss Millie from California to our Food Connection episode number 3. So let's welcome to Miss Millie. Hi, Ankita. Hi, Millie, how are you? How are you? Good afternoon, good evening, good night. I don't know, viewers. Hello. Yeah, so I think the people they are messaging me like personal messaging me like your program is going very good. You are connecting so many people, all around the world. So that's really good, and I wish like in moving episodes, we will connect with so many different type of people. So let's, today Millie is here. So Millie, just can you आप अपने बारे में कुछ मुझे 2-3 लाइन में बताइए कि आप कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर यू, व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर एंड यहाँ पे आप कहाँ पे हैं? Sure. So first of all, it's a great initiative. बहुत अच्छा है. मतलब जैसे हम जैसी moms और ladies जिनको cooking पसंद है, it's a good platform. And thank you for inviting me. I really am glad to be the part of your show. And my name is Millie. और मैं इंडिया में गुजरात से बिलोंग करती हूँ, like the most western part of India. और यहाँ पे भी western part of US, कैलिफोर्निया में हूँ. और मुझे तकरीबन 6 साल हो गए यहाँ पे. I moved in exactly right around the same day 6 years ago, like 17th Feb. So I'm glad like things are going. There was a little up and down initially, but abhi settle ho rahi hoon. I have one daughter and one, obviously one husband. He works in IT industry, and I myself work as an architect in a building construction company. So Great. All the best for your future, Millie. So let's start. And what are you going to show to our viewers today? What you're cooking? So I'm cooking. It's kind of a mix. It's vegetable bread rolls, and these I'm going to bake them today. But these can be deep fried as well as baked. I'm kind of just making a little bit of healthy option. कुछ लोग deep fried avoid करते हैं. So I'm baking them today, and I'll just start with जो मेरे ingredients है. Pretty simple, सब घर में available होता है और बहुत झटपट बन जाती है. So I'll just start. Okay. स्टार्ट करने से पहले आप मुझे आप लगने वाले इंग्रेडिएंट्स और कितना टाइम लगता है उसके बारे में जस्ट इन अ ब्रीफ लाइक यू कैन टेल अस. तो मतलब ये जो ब्रेड रोल्स है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स तो काफी सिंपल है और प्रिपरेशन का टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है. लाइक अगर दोपहर को डिसाइड कर लो तो शाम के स्नैक्स के लिए बन सकता है, चाय के साथ में भी अच्छा लग रहा है. और जैसे थोड़ा सा चॉपिंग है तो 10-15 मिनट्स मैक्स प्रिपरेशन है और 10-15 मिनट्स मैक्स कुक टाइम है. तो bake time consider karke. So it is kind of a little bit quick and easy recipe, 30 minutes maximum, from start to end, the moment you enter the kitchen and you are out. So I hope viewers like them. Yeah, so it is quick, easy and tasty. Okay, so let's start. Yeah. I hope it turns out tasty. Of course, like veg roll you are saying. Yeah, it's all veg. Yeah. There will be सब vegetarian है. हाँ. Vegetables, right. कोई लोग चाहे तो नॉनवेज यूज कर सकते हैं, बट मैंने पर्सनली कभी नॉनवेज ट्राई भी नहीं किया, यूज भी नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि इनमें और क्या यूज कर सकते हैं. बट या इट्स ऑल वेरी सिंपल. लेट मी स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स. So for that I have here you can see Shimla mirch and then onion. इधर की तरफ लेके जाइए, आपने वेजिटेबल्स की तरफ लेके जाइए. हाँ. Yeah, see, this is a bell pepper, green bell pepper. कोई भी colors use कर सकते हैं to make it more colorful from inside. Kids को पसंद आए उसकी वजह से या जैसे भी. This is onions. फिर ये है cabbage, finely chopped सब कुछ. Butter है हमारे पास और ketchup है यहाँ पे. फिर chili sauce है. उसके ये थोड़ा सा pepper shred करेंगे हम. और शेजवान चटनी है for little bit of garlicky taste, and I'm using olive oil and salt to taste, and that's about it. Okay, thank you. And then there you go. सही, ठीक है?
नहीं, आपका कैमरा मुझे नहीं दिख रहा, आपके मुझे जो I mean you have to show me like how you're cooking, like step by step. तो वहाँ पे focus, I need the camera. Yes. So this, would Yeah. this be better? Yeah, a little. Yes. Now this is better. Yes. Okay, Thank you. perfect. Now let me know if you need any more. Yeah. Okay. Perfect. 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 Okay, ठीक है. So let's. सबसे पहले I'll preheat the oven to 400 degrees Fahrenheit, so that while we are doing this, they start, because it will take a little longer. Okay. And there you go. And turn on the gas and heat in kind of 1 tablespoon of olive oil. Mhm. You can use any kind of oil. It's just that I prefer a little bit of olive oil Okay. to give it a different taste than our regular food. So आजकल तो सभी लोग ऑलिव ऑयल ही यूज करना चाहते हैं, ऑलिव ऑयल नहीं तो वो भी है, सही बात है. cow ghee, otherwise mustard oil. No canola, no vegetable oil, and that's really very harmful. Yeah. बहुत ही, हाँ, सब लोग आजकल हेल्थ ऑप्शंस प्रेफर करते हैं, so obviously olive oil is one of them. Correct. And then I'll just kind of warm it up a little bit. So I have like the bread slices ready. Okay. And then I'll also show how it is going to be, because I've left like 3 of the bread slices, and there is all-purpose flour that, or corn flour or slurry to make slurry. So it would be good if we can use any of rice flour bhi chalega, corn flour bhi chalega, all-purpose flour bhi chalega. So jinko jo pasand hai. So I think oil ho gaya hai. I'll use the onions. Okay. Just and saute it for like a minute. So onions मैंने लिए हैं 1/2 cup. आप चाहे तो जैसे क्वांटिटी के हिसाब से ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसे पसंद हो घर पे. अगर कोई लोग जैम खा रहे हैं तो अनियन स्किप भी कर सकते हैं. शिमला मिर्च, बेल पेपर, कैरेट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं. प्रिया, आपने जो अपने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो कितने ब्रेड, मतलब कितने ब्रेड रोल्स के लिए लिए हैं? तो इन सब को मिला के मेरे हिसाब से 8 to 10 ब्रेड रोल्स हो जाएंगे. 8 to 10. ओके. वेल ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन हमारा ब्रेड का साइजेस क्या है. मेरे ब्रेड काफी छोटे हैं, तो और फिलिंग्स आप कितना डाल रहे हैं, राइट, इस पे भी? हाँ, जैसे मेरे को आई लाइक माई थिंग्स लाइक रियली स्टफ्ड अप, पर किनको कम पसंद है. तो इसको एक हाथ मैंने सॉटे कर ले जब. उसके बाद इसमें डालेंगे ग्रीन बेल पेपर्स. ओके. तो ये बेल पेपर कितना कटा हुआ है? हाफ बेल पेपर है. जैसे अगर मैंने अनियन लिया है 1/2 कप, तो मैं बेल पेपर लूंगी 1/3 कप. तो क्योंकि बेल पेपर का एक थोड़ा सा टेस्ट होता है, तो हमको वी डोंट वांट इट ओवर पावरिंग. बट जिनको पसंद है आप वो ज्यादा लेना चाहे तो ले भी सकते हैं. ओके. और इसी दरमियान मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दूंगी, सो दैट दे कुक अ लिटिल बिट फास्टर. अच्छा. ओके. जिनको मतलब हम लोग तो बहुत मॉडरेट सॉल्ट यूज करते हैं, बट सॉल्ट इज समथिंग दैट is so much different in different places, different cooking, different homes. So yeah, and different taste buds. Yeah, correct. So like abhi I have grown up, like I have lived with my mom for 30 years, and now I'm here, I go back, I'm like, Mom, you put so much salt in your food. Mom कह रही तू इसी से बड़ी हुई है और मुझे correct. थोड़ा सॉटे करके फिर हम लोग इसमें कैबेज डाल देंगे. अच्छा. ओके. सो इसमें कैबेज एंड बेल पेपर के अलावा और भी जो भी वेजिटेबल्स आप चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं. हाँ, जो भी चाहते हैं वो डाल सकते हैं.
मतलब वी कैन प्रेफर लाइक मटर भी डाल सकते हैं, पर मटर वो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े होंगे तो आइदर वो मिक्सी में थोड़ा हाँ, क्या थोड़ा कहते हैं, जैसे ग्रेट कर लो हाफ वे, जो छोटा हो जाए। पोटैटो भी डाल सकते हैं, राइट, थोड़ा सा बॉईल कर। पोटैटो भी डाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हैं। मतलब ये ऐसा रेसिपी है जिसमें जो भी वेजीज, ब्रोकली भी कुछ करके डाल सकते हैं, कॉलीफ्लावर भी डाल सकते हैं, क्योंकि कैरेट एंड क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आजकल तो मतलब आई हैव नॉट नोन अ लॉट ऑफ किड्स हु हैव लाइक टैंट्रम्स, पर इंडिया में बहुत किड्स होते हैं जिनको खाने की परेशानी है, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो उनके लिए ये सब छुपा के खिला देना, और वैसे भी ब्रेड ब्रेड के अंदर है तो विन विन फॉर बोथ हो जाता है। मैं पर्सनली बहुत अगेंस्ट हूँ कॉलीफ्लावर के, तो मैं भी ऐसे इसी में डाल देती हूँ कॉलीफ्लावर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं डाल ही देती हूँ। अभी ये थोड़ा सा ऐसे, एंड इसको पूरा कुक करने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा जैसे सेमी कुक भी रख सकते हैं, little bit soft, little bit hard, because then we are also going to bake it, so it will also cook in that much. तो ये हो गया। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ये मैंने लिया है श्रीराचा हॉट सॉस, चाहे तो चाइनीज वाला रेड चिली सॉस या और कोई भी रेड चिली सॉस चाहे तो ले सकते हैं, पर मैंने पता नहीं, मतलब मैंने श्रीराचा प्रेफर किया क्योंकि इसमें थोड़ा सा टैंगी भी टेस्ट होता है, इसमें गार्लिक भी होता है, तो सेपरेटली गार्लिक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So I'll use kind of, let me see, it's okay, it's not dropping from there, so half a spoon, क्योंकि because ये बहुत तीखा भी होता है, सिर्फ हाफ स्पून डाल दूंगी मैं। अच्छा। And because I am also using like शेजवान सॉस, जो बहुत तीखा नहीं होता है, बट तो आपने इसमें ग्रीन चिली कहीं नहीं डाला, राइट? नहीं, ग्रीन चिली नहीं डाला क्योंकि बच्चों के लिए, हाँ राइट। हाँ, और मुझे लग रहा है कि ग्रीन चिली से थोड़ा ओवर पावरिंग भी हो जाता है। ऑल ऑफ दैट इज ऑप्शनल, हाँ, क्योंकि आपने बेल पेपर तो डाल ही दिया है, तो फिर ग्रीन हाँ चिली करेक्ट, और कलर के लिए तो हो ही गया है, और मैंने अलग से गार्लिक भी नहीं डाला क्योंकि कभी कभी गार्लिक बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है, और इन सब सॉसेज में गार्लिक है, तो आई जस्ट काइंड ऑफ डिडंट यूज गार्लिक आल्सो। So this one's like a Ching Szechuan sauce, which is like अभी इंडियन मार्केट में तो हर चीज readily available है। Right. So I'll kind of saute a little bit. और ये सब कुकिंग मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं, जल्दी जल्दी चाहिए तो तेज पे कर सकते हैं। आई यूज नॉन स्टिक पैन, सो तेज पे करो तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। Okay. So hardly like for 2 to 5 minutes, right? या सब कुकिंग हो जाएगा 2 to 5 minutes, मतलब 1 minute for onion, 1 minute for like capsicum over it, and then cabbage के पास, and then I'm going to use this ketchup. You can use any brand, but this time I'm using the Heinz. Okay. So see, that's the time. हमारा oven भी गर्म हो गया है। Okay. So आपने oven को 400 Fahrenheit पे रखा था, right? हाँ, 400 Fahrenheit पे लगाया हमने। Okay. And now I'm going to use a little bit of black pepper. Okay. ये फ्रेश मैं उसमें करूंगी क्योंकि जब फ्रेश करते हैं तो बहुत अच्छा उसका फ्रेग्रेंस और उसका टेस्ट ज्यादा उभर के आता है, और कम क्वांटिटी भी डाल पाते हैं, तो आई जस्ट डू लाइक, और इसमें अगर चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। एंड ऑल दो बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजंस मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली। अच्छा। बिकॉज यहाँ पे एक और चीज है, ग्रीन चिली कभी कभी बहुत ज्यादा तीखी मिलती है, कभी कभी बहुत कम तीखी होती है, तो आई जस्ट लाइक कि ठीक है हम कुछ और ही यूज कर ले। नहीं, क्योंकि आपने ब्लैक पेपर डाला है, उसका अपना अलग टेस्ट है, राइट? फिर आपने सेजवान डाला है, बेल पेपर है, तो आई डोंट थिंक लाइक ग्रीन चिली की जरूरत है। हाँ, तो और मैं एग्जैक्टली और मैं जैसे केचप भी डाला है तो थोड़ा स्वीट हो जाएगा, आई जस्ट लाइक डू अ पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। सॉरी।
No, it's okay. This is all because of the. California is a beautiful place. All done. Now it's all cooked and I'll set it aside to cool down and तब तक हम bread का preparation कर लेते हैं. Okay. Actually, I'll take it in another bowl so that जल्दी ठंडा हो जाए. ठंडा, हाँ जल्दी ठंडा हो जाए. So you're fond of cooking, huh? Especially what the salty things like snacks item or? Oh, totally. I'm like, luckily, मतलब मुझे तो sweet कम ही लगता था पहले भी, और now my husband's also the same and my baby is also the same. So हम लोग सारे एक ही जैसे हैं. वैसे मेरी बेबी बहुत छोटी है, अभी इतना सॉलिड खाती नहीं है, but good, okay. So yeah, we're done with that. And just kind of do a little bit cleaner. गैस बंद कर सकता, अभी गैस का कोई जरूरत नहीं है, हमारा हो गया. Okay. और अभी I'll take a cutting board और मैं आपको bread preparation बता देती हूँ. See, these are the breads that I've already removed the borders. But एक और मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि Okay, just chop off the border. Yeah, 1 second. So you are using the white bread or the whole wheat bread? So I have both. I have whole wheat also and I have white also. Okay. Any choice of bread is fine. It's just that अगर multi-grain है तो while rolling and all, the grains are going to kind of fall off. So I think the idea is कि थोड़ा सा अंदर they'll be like a little plain. So you just kind of take off this thing and yeah, sprinkle a little bit of water, like just sprinkle. Achha. Okay. And then I'll roll it with a rolling pin. Okay. बेलन सीधा कर देंगे, इसको जितना रोल कर सकते हैं कर लेंगे. अच्छा. और इसी वजह से मैंने बॉर्डर काटी है. चाहे तो रख भी सकते हैं, बट जब हम रोल करेंगे तो वो बॉर्डर से फटने लगेगा, जो भी हम मतलब ये ब्रेड हमेशा, तो इसीलिए हम उसको बॉर्डर से काट रहे हैं. और ये हो गया हमारा रेडी. अब थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर. Okay. दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, क्योंकि हम ऊपर भी बटर से उसको ब्रश करने वाले हैं. एंड देन ये जो है देयर इज लाइक ऑल पर्पस फ्लावर हियर, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका स्लरी बना देंगे, सो दैट व्हेन वी ऐड द स्टफिंग एंड क्लोज इट, इट विल जस्ट जॉइन इटसेल्फ. तो अच्छे से रोल और पॉकेट्स बन जाएंगे. तो ये हो गया है रेडी. और अभी मैं ले लेती हूँ हमारा स्टफिंग यहाँ पे. So I'll put stuffing right on one side. Okay. अगर दो ब्रेड्स यूज कर रहे एक ही साथ में और उसको रोल नहीं करना चाहते और जैसे टोस्टेड या बेक्ड सैंडविच बनाना चाहते हैं वैसे भी चलेगा, बट मैं सिर्फ एक साइड यूज कर रही हूँ स्टफिंग करने के लिए. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉर्न स्लरी टू द एजेस. Okay. अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है. There you go. और इसको I'll just roll it like this and seal. पूरा सील कर दूंगी.
वैसे हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो अगर पूरा सील नहीं है तो भी चलेगा, बट क्योंकि जब भी डीप फ्राई करेंगे तो अगर इसमें कहीं से खुला है तो फिर वेजीज सारे बाहर निकलने के, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है. So this is how it is going to look like. Okay. So I'll do this is one, and I'll just prepare more of these. Meanwhile, if anybody has any questions, we can talk about that. क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें हम लोग थोड़ा पनीर भी डाल सकते हैं, राइट, ग्रेट करके? हाँ, पनीर भी डाल सकते हैं, और मैं आई एम गोना यूज चीज ऑल्सो. जब बेक हो जाएंगे उसके बाद चीज भी डालेंगे, बट पनीर डाल सकते हैं, हेल्दी प्रोटीन ऑप्शन है, ग्रेट करके इसी के अंदर डाल दीजिए. करेक्ट, या so that's because the way you are making and the way I make is totally different. I also make but not like very frequent, क्योंकि मुझे भी ये सब सारे जो चटपटे सामान है बहुत पसंद है. अच्छा. yeah, so अच्छा है, नहीं चटपटा तो आप कैलिफोर्निया से कहाँ से हो मिली? तो हम जब कैलिफोर्निया के कैपिटल सैक्रामेंटो के बाजू में देयर इज अ लिटिल काइंड ऑफ अ सबर्ब कह सकते हैं. अच्छा. तो वहां पे बिलोंग करते हैं. इट्स फोल्सम. तो हम ऐसी जगह पे है जहाँ से सिटी ज्यादा दूर नहीं है और माउंटेन्स भी ज्यादा दूर नहीं है, बट लकीली हमारे यहाँ ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती, तो हम ज्यादा ठंडे नहीं होते. अभी देखो न्यू जर्सी में तो अभी 3 o'clock का प्रेडिक्शन था कि स्नो के लिए, और 10 मिनट नहीं 5 मिनट काफी अच्छा स्टडीज जैसे ही हुए, फिर बंद हो गए. तो हमको लगा चलो मिली के इस वेजिटेबल रोल्स के साथ चाय पियेंगे, और ये जो है स्नो जो है बाहर हो रहा है, और तुम्हारे वेजिटेबल रोल्स के साथ आई विल मेक सम टी and I will enjoy it. I know this is really actually good. This time I'm using like the bread, whole wheat bread. जो मेरी whole wheat bread ज्यादा बड़ी है regular bread से, तो this will obviously get like more stuffing into it. I know यहाँ पे मतलब लोग अटेंड कर पाए उससे अच्छा, जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करके लगाते यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, वो भी बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि नॉट ऑल द टाइम एवरीबॉडी वुड बी लाइक इजीली अवेलेबल टू अटेंड. वीकेंड्स में रहते हैं, राइट? तो करेक्ट. अदरवाइज तो फिर वीडियो में जाता है उनको देखने के लिए. जब मैं शुरुआत में आई थी मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था. मैंने बोली क्या जिंदगी है यार, यहाँ पे कोई है ही नहीं अगल बगल में, कहाँ जाऊंगी मैं. बट अभी तो खैर ठीक ही हो गया है. हम लोग भी कैलिफोर्निया में फ्रीमॉन्ट में रह चुके हैं. हाँ जी, अरे वाह, हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं वहां पे. अच्छा. वैसे आप मानेंगे नहीं, हम कल परसों ही बात कर रहे थे कि जाएंगे फ्रीमॉन्ट. अभी कोविड थोड़ा कम हो रहा है तो कहीं जाके आए. अच्छा. हाँ, अभी तो कोविड के कंट्रोल में है. So this is like my whole wheat bread pocket. Okay, good. So I'll make a few of those. तब तक मैं आपके साथ एक और मेरी कुकिंग टिप शेयर कर सकती हूँ. Yeah, you can share your cooking tips. Yeah, okay. तो अभी लेटेस्ट है, और मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया था कि दही कैसे जमाते हैं. वो मुझे कह रही है दही कैसे जमाते हैं. मैंने बोला भाई मैंने भी अभी अभी सीखा है, तू भी ट्राई कर ले. तो बड़ी खुश हो गई थी, तो मैंने बोला इसी को यूज कर लेती हूँ. सो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी पहले दही जमाने के लिए, पर मैंने फिर कहीं से आजू बाजू में किसी से पूछा जो घर पे दही जमाते, तो बहुत कम ही लोग जमाते हैं, पर फिर भी तो बेस्ट थिंग इज लाइक जितना आप दूध ले रहे हो, जैसे 3 cups दूध ले रहे हो, तो यू यूज लाइक 3 tablespoons ऑफ दही एट रूम टेम्परेचर. फ्रिज में से निकाल के अगर तुरंत लगाएंगे तो नहीं होगा. जैसे 3 tablespoons या थोड़ा सा ज्यादा, लाइक जस्ट अ टोकन मोर, लेके उसको रूम टेम्परेचर पे ले लो कि, और जब तक आप वो दूध में उबाल ला रहे हो तब तक तो वो रूम टेम्परेचर पे आ ही जाएगा. खैर, तो और दूध में सिर्फ एक उबाल लाना जरूरी है. उसके बाद उसको धीरे धीरे गर्म होने दो, और जब वो नॉर्मल मतलब अपने लूक वार्म पे आ जाएगा, उसके बाद हम उसमें जामन डाल देंगे दही का, तो वो हो जाएगा मिनटों मतलब घंटों में तैयार हो जाता है. पूरी रात भी नहीं रखो, जैसे
सीजन एकदम विंटर नहीं है तो मेरे कभी कभी 4-5 घंटे में भी तैयार हो गया है दही। और बंच में बना सकते हैं। आजकल तो जैसे इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गया है तो लग रहा है घर ही पे बना ले सब कुछ। कैलिफोर्निया में रह के तो हमेशा ही स्टिकर शॉक लगते रहते हैं। न्यू जर्सी वगैरह। outside and buy curd. आई नो, बट लाइक वही कि और हमारे को स्पेसिफिकली मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत ऐसे घर घर जैसा दही वाला टेस्ट चाहिए कि जो ज्यादातर एकदम जैसे अमेरिकन स्टोर्स में भी बहुत मिलते हैं दही, बट उनके खट्टापन बिल्कुल नहीं होता उनमें। और हम जैसे कभी कभी कुछ राजस्थानी सी रेसिपीज बना लेते उसमें खट्टा वाला दही चाहिए, तो फिर वो उन सब के लिए ये अच्छा पड़ता है। राजस्थान के मोस्ट ऑफ द डिशेस में तो दही बहुत जरूरी है, राइट? हाँ जी, सही बात है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे हमारे घर पे मेरे साइड पे मतलब माय मम्मी साइड वी आर जैन्स, तो जैन लोग भी बहुत ज्यादा ऐसे दही वाली रेसिपीज बनाते हैं। जब क्योंकि बहुत सारे दिन वो लोग फॉलो करते हैं, जब वो लोग ग्रीन वेजीज नहीं यूज कर सकते तो वो दही छाछ वाली सब्जी बना देते हैं, लाइक बटर मिल्क एंड स्टफ। सो जैसे गट्टे वगैरह कुछ कुछ भी दही के साथ बना लेते हैं। तो मेरे 5-6 पॉकेट्स रेडी हो गए हैं। उसको मैं बेकिंग ट्रे में डाल के फिर लगा के सेट करके अंदर लगा दूंगी। And you will know I still have like so much of things left here. Okay. मेरा स्टफिंग अभी भी पड़ा है after even like 5-6 of. So you can use it tomorrow or maybe. Yeah, I can, or I'll just add up like. और ये जैसे बेक भी इतना जल्दी हो जाता है, like 5 to 7 minutes. सिर्फ ब्रेड थोड़ी क्रस्टी हो जाए उतना ही काफी हो जाता है। तो आपकी बेबी को दिन भर का देखने का काम आपका होगा? हाँ, मतलब हम तो कर ही लेते हैं। अभी तो वीकेंड है तो हस्बैंड भी देख लेते हैं, और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। वो बहुत लाइक हमेशा मेरे संग ही इज ऑलवेज लाइक हमेशा मतलब हर स्टेप पे साथ में है। तो इट इज बिकमिंग लाइक ऐसे इट इज ब्लेसिंग। आई हैव फ्रेंड्स जिनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं भी है, जिनके बच्चे भी होते हैं, तो सब कुछ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट मेरे हस्बैंड फिंगर्स क्रॉस्ड एंड टच वुड बहुत अच्छे हैं। तभी तो you can show your cooking skill here, right? I know, that's why अभी he is taking care of my daughter. That is why I'm here. Otherwise वो मेरे को ही चिपक गई होती अभी तक तो। Yeah. तो Once you are done with all the stuffing, all the breads, just show it, like before. yeah, I'll do that. Yeah. So spread, to your friends here in California or wherever they are. So about this. Yeah, so they that's true. Yeah. Yeah, actually, you know what? Everyone's like so कि इसको खाने बनाने का इतना शौक है, हमेशा खाना ही खिलाती रहती है। तो मैंने बोला अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है हम। सो ये देख लीजिए, ये जो मेरे हैं बेकिंग ट्रे में सब रेडी है। Okay, good. और इनमें मैं थोड़ा बटर स्प्रेड कर दूंगी। लाइक ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे है मेरा बटर, तो या फिर इसी पे ऑलिव ऑयल भी ब्रश कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो इजियर। तुम लोग की जनरेशन में कुकिंग का शौक होना, इट्स लाइक रियली, मेरे हिसाब से इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज मैंने अभी लाइक
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुकिंग का शौक होते हुए भी बहुत बोर हो जाते हैं, तो हमेशा इनोवेशंस लाने पड़ते हैं। जैसे कुछ कभी कोई वेजीज नहीं मिल रहे, क्या करेंगे? अब ऐसी ऐसी चीजें, इनमें वेजीज की जरूरत भी नहीं है, ये तो कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत सिंपल अवेलेबल है, प्याज और बेल पेपर और वो सब। तो इट इज जस्ट बिकमिंग कि हम लोग को, मुझे जैसे इंडियन वेजीज की बहुत, आई एम वेरी लाइक फॉन्ड ऑफ इंडियन वेजीज, तो फिर ऐसा लग रहा है कि कहाँ जाएंगे, बट नाउ काइंड ऑफ आई हैव इवॉल्व्ड एंड trying to still evolve कि जहाँ पे जो मिलता है उससे best you take, get your best taste and best things. So now I'll just show how I'm gonna put this in the oven. मेरा oven preheat हो चुका है, काफी समय हो गया. So I'll just put it in the oven for like 5 minutes. I'll just set the timer. Like you said, बस थोड़ा सा crustiness आ जाए ऊपर, कलर। हाँ जी, बस यही crustiness आ जाए और एक बार ही पलट दे उसको। और स्पेशली मैंने इसमें टमेटोज नहीं डाले क्योंकि वो शायद थोड़ा सॉगी हो जाएगा, तो आई वाज नॉट श्योर। और मैंने कभी भी, एंड पर्सनली इसके अंदर भी चीज डाल सकते हैं, जैसे आपने पनीर बोला वैसे चीज भी डाल सकते हैं, बट अगेन अगर चीज मेल्ट हो जाता है तो दैट्स अ डिफरेंट प्रेफरेंस। कुछ चीज मेल्ट होके फिर वो बहुत वो हो जाती है एंड दे बिकम लाइक तार तार निकल जाते हैं उसके, तो इससे अच्छा आई जस्ट ग्रेट इट ऑन टॉप एंड देन जस्ट मेक इट लाइक सिंपल सो दैट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड देन वंस आई हैव इट बेक्ड, मैं उसको फिर से, जैसे थोड़े ऐसे कोई गेस्ट डीले हो रहे हैं या हमने सब पहले से कर दिया है, तो जब गेस्ट आने वाले हैं, जैसे मैंने 3 बजे प्लान किया और बना लिया और गेस्ट आ रहे 6 बजे, तो मैं उसको थोड़ा सा फिर से 2 मिनट गर्म कर लूंगी, तो गर्म भी हो गया और चीज है जो कड़क वड़क भी नहीं होगा और चीज वो भी नहीं होगी, जैसे चूई हो जाती है कभी कभी चीजेस, तो वो भी नहीं होगा। सो ऑल दोस थिंग्स, जैसे टमाटर वगैरह डाल दो तो वो सॉगी हो जाएगा। एग्जैक्टली। और केचप डाला है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टेस्ट आ ही जाएगा। Now can you go for your second tip? Yes, so my second tip is, I'm not sure if people know about this, but कुछ भी अगर पकाना है, कोई भी खाना, तो खट्टापन हमेशा एंड में डालना चाहिए। मुझे लग रहा है जैसे किसी सब्जी बनाते टाइम अगर टमाटर डालने हैं, ऑब्वियसली प्रेशर कुकर या इंस्टा पॉट में कुक करे तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बट अगर जैसे पाव भाजी बना रहे हैं या कोई और भी बना रहा है, तो प्याज को when if you cook add anything sweet or tangy in the beginning, it'll take more time to cook. Okay. So we just kind of add like onions, उसको cook होने दो, थोड़ा सा soft होने दो, उसके बाद चाहे टमाटर या आमचूर या इमली जो भी डालना है उसके बाद डाले। कभी कभी हम तो जैसे गुजराती है तो हम मीठा भी बहुत डालते हैं खाने में तो वो थोड़ा एंड में डाले तो टेस्ट तो आ ही जाएगा। और टमाटर जैसे कुक होने में भी कम टाइम लगता है प्याज से या शिमला मिर्च से, तो उस तरह से वो हमेशा हम, तो मैं हमेशा कहती थी कि ऐसा करना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड कभी बिलीव नहीं करते थे। वन टाइम ही हैड हिज ओन एक्सपीरियंस, मैंने बोला इसी वजह से मैं कह रही हूँ तो कहते नहीं, अभी आई विल टेक इट इन माइंड। सो आई जस्ट थॉट ऑफ लाइक कि ठीक है, just kind of try to make sure कि कुछ भी खट्टा या मीठा end towards the end of the cooking time डाले, तो it will just get little taste also better and the other things will get cooked faster. No wonder वो कुक हो जाएगा खट्टा डालने से, पर वो समय ज्यादा लग जाता है। और इस खट्टे से जो है वो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो इस फास्ट वर्ल्ड में पता नहीं, जैसे अभी तो खैर सब कुछ इंस्टा पॉट में बनता है अच्छा। खाना सब्जी बना लो इंस्टा पॉट में, पाव भाजी बना लो इंस्टा पॉट में, सभी कुछ इंस्टा पॉट में बन जाता है। पर मैं और मेरे हस्बैंड अभी भी लाइक ट्रेडिशनल कुकिंग फॉलो करते हैं, इंस्टा पॉट को प्रेशर कुकर की तरह ही यूज करते हैं। तो ग्रेवी के लिए वी जस्ट नीड लाइक कि ठीक है, we'll use the regular. That's really good, foodie तो एक ऐसा चीज है, like you can do so many innovation in like in the pattern of cooking, correct? Yeah, that's really true. So इसमें ये जो है हमने ये बनाया, इसमें अगर
थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे और चाहे तो विनेगर डाल के उसको चाइनीज टेस्ट भी दे सकते हैं, लाइक नूडल्स डाल के, तो वो ज्यादा फिलिंग भी हो जाएगा। जैसे अपन स्प्रिंग रोल बनाते हैं वैसे ही ब्रेड के अंदर, but you add noodles and carrots and kind of soy sauce, it'll give a Chinese taste. So it'll, like, this has a little bit of Chinese taste because मैंने शेजवान डाला है और श्रीराचा डाला है, but it's just like, so इसी डिश के बहुत सारे वेरिएशन भी हो सकता है. You do not add any kind of thing, but you add more of garlic. You can make it Italian. Yeah. So, and moreover, I was thinking this batter, instead of using the bread, we can use the chapati also, right? Chapati में अच्छे से filling डाल के and then roll it, yeah. चपाती रोल करके, और अपन के जैसे टूथपिक आते हैं, वो भी कर सकते हैं. टूथपिक डाल दो उसको, तो जब फ्राई करते हैं तो द चपाती इज नॉट गोइंग टू कम आउट, मतलब वो स्टिक रहेगी और उसके अंदर से वेजीज भी. आई एम नॉट श्योर चपातीज बेक करने में कैसी होती है, बट इतना आई डोंट थिंक दैट विल. I was just thinking, I have never done this, so मैं सोच रही थी कि now let's see, it started to rain. देखते हैं कैसा निकला है the first 5 minutes. So this is what it's looking like. Let me just kind of turn it around and see. ये इसको अगर ये दिख नहीं रहा है brown, but if you touch it, it's going to be more crusty than how it is, and the back side has become more brown. You'll be able to see. Yes, I can see that. So, and obviously if you want like more brown, तो आप ज़्यादा temperature पे भी कर सकते हैं. So I'll just roll it. I'll turn around and I'll add butter on the other side also. Okay. So that बटर या ऑयल ऐड करने का एक ही फायदा है कि ये बहुत ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ब्रेड है पूरा का पूरा, उसके जो स्टफिंग तो ड्राई नहीं है बट ब्रेड ड्राई हो सकती है. तो इसी वजह से थोड़ा सा बटर या ऑयल जो भी चाहे वो ऐड कर सकते हैं. And I'm going to put it back for another 5 to 7 minutes. I think 5 minutes should be enough. Yes. वैसे मैंने शायद बताया नहीं, बट इसके अलग अलग शेप्स भी ले सकते हैं. लाइक स्टफिंग को थोड़ा एक्सपोज रख के जैसे हम बेक कर रहे हैं, तो वी कैन मेक अ कोन आउट ऑफ द ब्रेड ऑल्सो where the stuffing is open, and that will also look really good. Let's try one of that. कोन जैसा कैसा लग रहा है. Not going to bake it right away, but we can try it on. या जो फिर अपने जो कुकी कटर आते हैं अलग शेप में, जैसे हार्ट का हुआ. करेक्ट. और कभी कभी ऐसा है कि इफ वी डू नॉट वांट द ब्रेड, जैसे एक स्लाइस नहीं तो इसमें स्टफिंग करके साइड में स्लरी लगा के उसके ऊपर दूसरा स्लाइस भी रख सकते हैं. जैसे आप कह रहे हो कोई भी शेप, राउंड शेप, हार्ट शेप, स्टार शेप, जो भी करना कर सकते हैं. So everyday cooking, you prefer to eat like our Indian dal, rice and curry, or yes, mostly तो हाँ, जैसे कुछ ही अलग बना रहे तो वो तो चेंज डे ही होता है, ट्रीट डे होता है जब अलग बनाते हैं. सभी बना लेते हैं. खैर कभी कभी मैक्सिकन बना लेते हैं, इटालियन बना लेते हैं, चाइनीज बना लेते हैं, और सब में इंडियन टेस्ट होता है. अच्छा. इसके अलावा पूरा प्योर तो पता नहीं, पसंद भी आएगा नहीं. कभी कभी बर्गर भी बना लेते हैं. बर्गर में ज्यादा इंडियन टेस्ट नहीं ला सकते, बट मैं उसमें भी ऐसा कुछ बना के रखती हूँ, स्टफिंग that makes like gives it a more density. आखिर दिल है हिंदुस्तानी. I know, totally. Yeah, I think जब अगर इसको कोन बनाना है तो उसको ज्यादा बेलना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा. या तो ब्रेड इजीली रोल हो जाएगी टू फॉर्म अ कोन. तो ये हो गई मेरी एकदम पतली सी ब्रेड को रोल करके, और इसमें मैं पहले ही कोन बना लेती हूँ, उसी के बाद उसमें स्टफिंग डालूंगी.
So ये हो गया मेरा cone. I can put stuffing in that now. See, this is how it's gonna look like a cone stuff. Yes. Good, good. And it's only 2 minutes left for the next bake. तब तक हम cheese grate कर लेते हैं, so that we don't spend time when the cheese for the cheese. तो चीज आप कौन सा ले रहे हो? So मैंने तो अभी मोज़रेला ही लिया है, पर कोई भी चीज ले सकते हैं, प्रोसेस चीज. बट आई थिंक मोज़रेला ज्यादा ही वायबल है इन सब के लिए कि will not go bad. बाकी चीजेस का मैंने ज्यादा चीज से एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, बट अमूल चीज जो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ. बट आज के लिए तो मोज़रेला ही है. कोई भी मतलब आप पेपर जैक ले सकते हैं, फिर मॉन्टरे जैक है जो पेपर जैक का थोड़ा सा विदाउट चिली फ्लेक्स वाला ऑप्शन है, वो भी ले सकते हैं. So I have like those kind of cheeses, pepper jack, Monterey jack. पर अमेरिकन प्रोवोलॉन जिनको जैसे वो वाली चीजें पसंद है, स्विस चीज, तो वो भी ले सकते हैं. I don't think वो अच्छा लगेगा. हाँ क्या? मैंने कभी उन सब में ट्राई नहीं किया, यही एक ही चीज मैंने ट्राई किया है. मोज़रेला अच्छा लगेगा या तो फिर अपना इंडियन साइड में लाइक. बट पेपर जैक अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा सॉल्टी और स्पाइसीनेस ज्यादा होता है, जैसे अमूल चीज की तरह. अच्छा अच्छा. क्योंकि अगर मुझे कहीं पे मोज़रेला बहुत बड़ा है, मुझे इतना बड़ा नहीं लेना है, तो मैं पेपर जैक ले लेती हूँ या मॉन्टरे जैक ले लेती हूँ. अच्छा. तो मैंने चीज ग्रेट कर लिया है यहाँ पे, और अभी आई जस्ट टेक अ सर्विंग डिश एंड देन वी कैन गेट थिंग्स रेडी. उसने भी आवाज करी दी है. अवन ने बुलावा, अवन का बुलावा आ गया है. वो हो गई है, अच्छी सी क्रस्टी सी हो गई है ब्रेड. तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ब्रेड एकदम क्रस्टी हो गई है, दोनों साइड से थोड़ी सी ब्राउन हो गई है. एंड it just like looks good and it's hard at the same time. It's कच्चा, थोड़ा सा कच्चा भी नहीं लगेगा. And I'll show you how we are going to serve them. Okay. Just have this placed here. I'm going to cut them into half. Let me know if you cannot see. Yeah, we can see. Yeah, I can see. Correct. Okay, perfect. So there, I'll cut them into half, like I said, diagonally. And see, there's stuffing in there. Wow. So obviously, जैसे जिसकी चॉइस है, ज्यादा स्टफिंग लगाना है वो भी कर सकते हैं. मुझे तुम्हारा प्लेट वाला रोल्स नहीं दिख रहा है. हाँ जी, मुझे तुम्हारा हाँ, now I can see. Yeah, perfect. Yeah.
So there we have it ready. And you can see I have like 6 bread pieces and 2 of brown bread. I just sprinkle some cheese over it. Okay. And then we can spread some ketchup. Mm-hmm. Looking very colorful and looking very yummy. Thank you. I hope जो कोई भी ये try करे उनको पसंद आए जैसे मैंने बनाया है उनको भी they like it. And then you can always use the Szechuan sauce to serve it. But I think I'll just keep like a little bit ketchup on the side. Millie the chef. Trying to give a final touch. That's really good, yeah, Millie. So you are very innovative. That's what I was observing from the starting to end of your cooking. And it was very neat and clean cooking also, and very impressive. And now the time is for your third cooking tip. Okay, awesome. So my third cooking tip is gonna be जैसे it's not a cooking tip more or less, it's just kind of a eating tip कि अगर खाने में नमक कम पड़ गया है या नहीं पड़ा है तो ऊपर से कम डालने की कोशिश करें. मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा डाइनिंग टेबल पे रखते हैं कि हाँ चलो कम ऊपर से डाल देंगे. But it just sounds a little bit unhealthy now that I have known कि आजकल जैसे बहुत लोग they are going through a lot of pressure, otherwise just adding salt ऐसे ऊपर से is kind of going to add to it, to your blood system. So just kind of a health tip at the same time. और जैसे हम कुक करते हैं तो इतने समय से कर रहे हैं तो अंदाज आ ही जाता है कि कहीं कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो कभी थोड़ा सा खाना बन रहा है उसके एंड टाइम पे टेस्ट कर लो और वहीं पे डाल दो, डाइनिंग टेबल पे डालने की जरूरत ना पड़े, ट्राई कर ले तो बहुत अच्छा हो जाता है. It's really helpful. We have started following it now and we feel better about it. So it's one of those kind of cooking at the same time health tip too. Yeah, good. Thank you, Millie, for coming to our show Cooking Connection, and keep innovating, new trips, new tricks, and we will see you in some of our coming episode also. So definitely. Just let me know in advance and I'll be prepared. I'm so glad to be a part of this show. At the same time, I can just share with people at a larger platform. वरना घर पे तो जो आ रहे हैं उन्हीं को पता है कि मैं क्या बना रही हूँ. That's why I started this. Yeah. So मेरे viewers को, मेरे दोस्तों को यही मैसेज है कि आप इस वीडियो को देखें और इसके तरह तरह के जो इसने इनोवेशन किए हैं इसमें उसको आप देखें, उसको लाइक करें और शेयर करें. Okay, Millie, thanks for coming. Have a good rest of your day. Thank you. Bye-bye. Bye. So चलिए अन्य करते हैं अपना ये प्रोग्राम कुकिंग कनेक्शन. तो इसी तरह जुड़ते रहिए, बनाते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए. तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में कुकिंग कनेक्शन नेक्स्ट सैटरडे. थैंक यू. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.